Hello everyone, welcome to my channel. Now English is spoken. Nice to meet you to all of one. After a long time I'm here. Sorry for this inconvenience. Till now we have learned something about the present indefinite tense. It was the applications to understand about any type of sentences which would be spoken from present indefinite tense. Okay. अभी तक हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सम स्टेप को पढ़े हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशंस को हम लोग समझे हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बोला जा रहा है तो उस आइडेंटिफिकेशन के थ्रू हम उस सेंटेंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज स्पोकन फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कितने तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं. ओके, सो देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज स्पोकन फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं और ये जो नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट्स फॉर एवरी यूजेस. इफ एनी टाइप ऑफ यूजेस वी आर लर्निंग राइट नाउ, इन दिस 4 स्टेप वुड बी अवेलेबल इन ऑल ऑफ दैट. ओके, अगर हम किसी तरह की कोई भी यूजेस पढ़ रहे हो, ये जो स्टेप होता है वो सब यूजेस को फॉलो करता है. ये स्टेप हर यूजेज में रहता है. सो ये स्टेप के बारे में हमको अच्छा से समझना है कि ये स्टेप क्या है, क्योंकि इस स्टेप को जब हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हम किसी तरह के अगर कोई भी यूजेज पढ़ रहे हैं तो वहां पे अंडरस्टैंड करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, let's go to know about what is this step. So there are 4 type of step is spoken. First is the affirmative, second is the negative, third is the first interrogative, and fourth is the second type of interrogative. These are the step is spoken from any type of uses. जैसे कि किसी तरह के अगर कोई भी यूजेस हम पढ़ रहे हैं तो उसमें 4 तरह के स्टेप होते हैं. उस स्टेप को हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो स्टेप हम जान लेते हैं तो किसी तरह के कोई भी यूजेस हम पढ़ रहे हैं तो उस यूजेस से अगर सेंटेंस बोला जा रहा है तो हम उस सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने में हमको आसानी होगा, आसानी से हम उसको समझ सकते हैं. जैसे कि 4 तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं. पहला अफर्मेटिव बोले जाते हैं, दूसरा नेगेटिव बोले जाते हैं, तीसरा फर्स्ट इंटरोगेटिव और चौथा जो होता है सेकंड टाइप इंटरोगेटिव को बोले जाते हैं. ओके, सो लेट्स गो टू ओपन अ फर्स्ट स्टेप. चलिए चलते हैं, पहले स्टेप को हम ओपन करते हैं थ्रू अ सेंटेंस. एक सेंटेंस के थ्रू हम पहले स्टेप को ओपन करते हैं और सेंटेंस के थ्रू हम समझेंगे कि हाँ अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, एंड फर्स्ट इंटरोगेटिव क्या है, एंड सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव क्या है. सो अफर्मेटिव सेंटेंस, फर्स्ट स्टेप. Ram goes to home. Ram goes to school. This is the affirmative sentence. In this sentence, there is a nothing. This means not a negative, not any type of interrogative sentences, not any type of interrogative word. So this is a simple sentence. So if this is a simple sentence, so we can say about this. This is the affirmative sentence. In affirmative sentence, there is a nothing. It is look like a simple. Okay. So this is the affirmative sentence. Okay, let's go to open a second step. Negative. Ram does not go to school. Ram does not go to school. Not. In this sentence there is a not. If there is a not in the sentence, so we can say directly to the sentence, this is a negative sentence. In negative sentence there is a negative word. If there is a negative word, so directly we can say this is a negative sentence. So negative sentence like this: Ram does not go to home, or Ram does not go to school. So this is the negative sentence. Negative sentence look like this. Next step, first type of negative sentence. Does Ram go to school? Does Ram go to school? In this sentence, just notice to the sentence, does Ram go to school? This means in this sentence the helping word is come first. Helping word is come first. So if any type of sentence in the first time there is a helping verb, so directly we can say about this sentence, this is the first type of interrogative sentence. This is the first type of interrogative sentence, because in this sentence there is a does. In this sentence there is a does, and as much as we know, do and does is helping verb or present indefinite tense. Okay, so does Ram go to school? So by this step we can understand this is a first type of interrogative sentence. Okay, next step, second type of interrogative sentence. Open a second type of interrogative sentences through example.
Ram, when does Ram go to school? When does Ram go to school? In the sentence there is a question word when. As much as you know, question word when, where, how, what, these are the question word. If any type of sentence there is a question word, so we can say this is the second type of interrogative sentence. In any type of sentence there will be like this, so directly we can say what? This is the second type of interrogative sentence. Okay, understood about that? Let's go to अंडरस्टैंड सेम ऑफ द स्टेप इन हिंदी। चलिए चलते हैं, इस सेम स्टेप को हम थोड़ा सा हिंदी में भी समझ लेते हैं कि ये स्टेप हमारे लिए क्या है और ये कैसा है। ओके, सो पहला स्टेप हमारा क्या है? पहला स्टेप क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए चलते हैं हम अफर्मेटिव स्टेप को एग्जांपल के थ्रू समझे। सो राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, दिस इज द अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस लुक लाइक इट मींस simple sentence. In this sentence not a negative and not any type of question word. Okay, so if not any type of question word and not a negative word, so directly we can say this is the simple sentence. इसमें देखिए इस सेंटेंस में ना ही निगेटिव है और ना ही ऐसा कोई क्वेश्चन वर्ड है। सो अगर ऐसा जो सिंपल सेंटेंस आता है जिसमें निगेटिव भी ना रहे, क्वेश्चन वर्ड भी ना रहे, तो हम उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप के लिए चलते हैं। दूसरा मेरा स्टेप क्या है? निगेटिव। सो निगेटिव सेंटेंस चलिए चलते हैं निगेटिव सेंटेंस को। राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता। अब यहाँ पे देखिए नहीं आ गया, तो इस नहीं को हम डायरेक्टली सेंटेंस समझ लेंगे ये निगेटिव सेंटेंस है। जब मेरे सेंटेंस में नहीं आया है तो वहां पे हम उसको निगेटिव सेंटेंस समझ जाएंगे, क्योंकि राम स्कूल नहीं जाता है। इस नहीं से हम कैच करेंगे कि ये मेरा निगेटिव सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट स्टेप मेरा थर्ड स्टेप क्या है? फर्स्ट टाइप ऑफ निगेटिव सेंटेंस। क्या राम स्कूल जाता है? अब यहाँ पर चलिए देखते हैं मेरा सेंटेंस किस चीज से स्टार्ट हुआ है, क्या से स्टार्ट हुआ है। कोई भी सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट होता है तो इसे हम फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमको अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत आसानी से हम इसको समझ रहे हैं। क्या से स्टार्ट वाले सेंटेंस को हम फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या राम स्कूल जाता है? क्या राम स्कूल जाता है। यहाँ पे देखिए क्या राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पे क्या से स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो चलिए एग्जांपल के थ्रू इसको भी हम समझ लेते हैं। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, राम कब स्कूल जाता है, राम कब स्कूल जाता है। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस के बीच में कब आया है, कब, कब यानी कि क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड, कब, क्यों, कैसे, कहां, ये जितनी भी वर्ड है क्वेश्चन वर्ड है। अगर ये इस वर्ड में से कोई भी वर्ड किसी भी सेंटेंस के बीच में आता है, किसी भी सेंटेंस के बीच में आता है, तो इसको हम सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, so these are the step of present indefinite tense. It is not only for the present indefinite tense, it's happen with all of the uses. ये केवल present indefinite tense के लिए नहीं होता है, जितने भी uses हम पढ़ेंगे सभी uses के साथ हमको ऐसे ही फॉलो करना है। I hope you have understood about that whatever I have told you. मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से इसको समझे हो जो कुछ मैं आपको बताया हूँ। But is there any type of confusion do you have to understand about that? So don't worry, I am here, and please write in my comment box about your confusion. Absolutely, I will do my best to understand you.